بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر CSS اسٹوڈنٹس، آج ہم برین ڈرین کی بات کریں گے اور برین ڈرین کے کازز اور اس کے سولوشن فار پاکستان کی بات کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو برین ڈرین. انسانی سرمایہ یعنی کہ ہیومن کیپٹل قوموں کا اصل سرمایہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ سرمایہ تیزی سے آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے. برین ڈرین سے مراد اسکلڈ اور ایجوکیٹڈ انڈیویجولز جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز اور ریسرچرز اور IT ماہرین کی بڑے پیمانے پر آن لارج اسکیل جو ہجرت ہے، اس کو برین ڈرین کہتے ہیں. پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اس میں یہ عمل نہ صرف انٹلیکچوئل ریسورسز کا نقصان ہے، بلکہ اکانومک پروگرس، انوویشن اور عالمی مقابلے کی صلاحیت یعنی کہ گلوبل کمپیٹیٹیونیس کے لیے بھی خطرہ ہے. اگر پاکستان نے بر وقت اس مسئلے کی جو وجوہات اور ریزنز ہیں اس کو نہ سمجھا اور اس کا سلوشن نہ نکالا تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایک خواب رہے گی. Now we talk about our thesis statement of this essay, brain drain. پاکستان میں برین ڈرین کی بڑی وجوہات ہیں. ان میں سب سے اہم اکانومک ہارڈشپس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ویک ریسرچ انفراسٹرکچر اور ترقی یافتہ ممالک کی سماجی کشمکش جس کو سوشل پل کہتے ہیں. لیکن اگر پاکستان تعلیمی سرمایہ کاری، میرٹ پر مبنی نظام اور ڈائسپورا کی شمولیت اور معاشی اصلاحات لائے تو اس نقصان کو موقع پر بدلا جا سکتا ہے. اب ہم اس کے برین ڈرین کے کازز کی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اکانومک کازز آف برین ڈرین کی بات کرتے ہیں کہ برین ڈرین کے پیچھے معاشی وجوہات کون سی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے افراد جو ہیں باہر کے ملک کی طرف رخ کرتے ہیں. پاکستان میں برین ڈرین کی سب سے بڑی وجہ ویک اکانومی ہے. ہنرمند افراد یعنی کہ اسکلڈ انڈیویجولز، انایڈیکویٹ ریمونریشن، مہنگائی یعنی کہ انفلیشنری پریشر اور ترقی کے محدود مواقع یعنی کہ لمیٹڈ کیریئر ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے بیرون ملک جانے پر مجبور ہوتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک بہتر تنخواہیں، محفوظ معاہدے یعنی کہ سیکیور کانٹریکٹس اور ہائی لیونگ سٹینڈرڈز فراہم کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہر سال ہزاروں پاکستانی ڈاکٹرز اور نرسیں بہتر مالی امکانات کے لیے گلف کنٹریز، UK اور USA کا رخ کرتی ہیں. IT سیکٹر میں بھی یہی رجحان ہے جہاں باصلاحیت ڈیولپرز یورپ اور کینیڈا جاتے ہیں. سیاسی عدم استحکام اور سیکیورٹی مسائل، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ سیکیورٹی کنسرنز کی بات کرتے ہیں. یہ کیسے برین ڈرین میں جو ہے اہم کردار ادا کرتے ہیں. مسلسل سیاسی ہنگامہ رہا یعنی کہ پولیٹیکل اپ ہیولز، ویک گورننس، کمزور حکمرانی اور انسیکیورٹی برین ڈرین کو تیز کرتی ہے. بار بار حکومتوں کی تبدیلی یعنی کہ رجیم چینجز، پالیسی کے تسلسل کی کمی، لیک آف پالیسی کنٹینیوٹی اور قانون و امن کے مسائل، لا اینڈ آرڈر ایشوز اور سچویشنز جو ہیں وہ عوام کے اعتماد کو ختم کر دیتے ہیں اور خاندان اپنی حفاظت اور فیوچر کی ضمانت کے لیے آؤٹ آف کنٹری ہجرت کو ترجیح دیتے ہیں. ایک نمایاں مثال جرنلسٹ اور اکیڈمکس کی بیرون ملک ہجرت ہے جو ڈائیورسٹی آف تھاٹ کو کمزور کرتی ہے. تعلیمی اور تحقیقی کمزوریاں، ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ ڈیفیشنسیز بھی برین ڈرین میں اہم کردار ادا کرتی ہے، برین ڈرین کو تیز کرتی ہیں. پاکستان کا اعلیٰ تعلیم یافتہ شعبہ جو ہے وہ کمزور ہے اور پسماندہ ہے. آؤٹ ڈیٹڈ کریکولا، لمیٹڈ ایکسیس ٹو گلوبل جرنلز، انسفیشینٹ ریسرچ فیسلٹیز، ناکافی تحقیق کی جو سہولیات ہیں اور اس کے علاوہ تعلیم کا انڈسٹری کے ساتھ جو لنک ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے، وہ کمزور ہونے کی وجہ سے محققین کو جو ہے محدود کر دیتا ہے. طلبہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں اور اکثر واپس نہیں آتے. بیرون ملک جدید لیبارٹریز اور تحقیقی ماحول جو ہے
वो रिसर्च कल्चर इन्हें ज़्यादा मौके फ़राहम करते हैं। तो इस वजह से ब्रेन ड्रेन ज़्यादा होता है कि आउट ऑफ कंट्रीज़ में, बाहर के मुल्कों में रिसर्च का कल्चर होता है, मॉडर्न लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं और तलबा जो है वो उस इंडस्ट्री के साथ लिंक उनका होता है, इसलिए मुहक्किकीन ज़्यादा और अपने ख़ानदान और अपने बच्चों की बेहतर महफूज मुस्तकबिल के लिए भी चले जाते हैं और वो अपने हमारे मुल्क को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और बार बार की हुकूमतें बदल रही हैं और रिसर्च की फैसिलिटीज़ नहीं हैं और हमारा जो करिकुला है वो आउटडेटेड है और जो रिसर्च करना चाहता है उसके लिए कोई रिसर्च के इदारे नहीं हैं, कहीं पे भी नहीं है, ना इंजीनियर्स में है, ना इंजीनियरिंग में है और ना ही डॉक्टरी में है। यानी कि MBBS करने के बाद जो है सिंपल जो है वो घिसे पिटे जो है कोर्सेज़ कर लेते हैं और वो फिर वहाँ पे पाकिस्तान में अपनी खिदमत देने पर मजबूर होते हैं। अज़ीज़ तलबा, अब हम बात करते हैं ब्रेन ड्रेन के पीछे जो समाजी और नफसियाती कशमकश होती है, यानी कि माशरती और नफसियाती जो कशमकश होती है, यानी कि सोशल और साइकोलॉजिकल पुल फैक्टर्स, उसकी बात करते हैं कि वो कैसे ब्रेन ड्रेन को तेज़ करते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक की बेहतर सेहत की जो सहूलियात होती हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो होती हैं और बच्चों के लिए आला तालीम और क्वालिटी एजुकेशन जो है और सिविक अमेनिटीज़ जो हैं, शहरी सहूलियात जो हैं और राय के इजहार की आज़ादी यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, ये बैरून मुल्क की जो क्वालिटीज़ हैं पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए बड़ी कशिश रखते हैं। मज़ीद ये कि पाकिस्तान के बारे में जो नेगेटिव ग्लोबल इमेज है, ये भी आलमी तासर भी जो है वो वापस आने की राह में रुकावट बनता है। जो ख़ानदान बैरून मुल्क मेयार ज़िंदगी अपना लेते हैं वो वापस आना पसंद नहीं करते, जिससे जो स्किल का मुस्तकिल नुकसान होता है। अब हम ब्रेन ड्रेन के नताइज की कंसिक्वेंसेस की बात करेंगे जो ब्रेन ड्रेन से हमें भुगतने पड़ेंगे। ब्रेन ड्रेन के नुकसानात गहरे हैं। पाकिस्तान अपने बेहतरीन डॉक्टर्स से महरूम हो रहा है, जिससे अस्पतालों में स्पेशलिस्ट की कमी पैदा हो गई है। इंजीनियर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन की हिजरत इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सुस्त कर देती है। मुल्क पेटेंट्स, रिसर्च कंट्रीब्यूशंस और इनोवेशन से भी महरूम रहता है, जिससे तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में फ़ासला बढ़ता है। ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जा सकता है, इसका सलूशन क्या है और इसके बारे में हम क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंसेंटिव्स, इस पे काम होना चाहिए। पेशेवर अफराद को बेहतर रिम्यूनरेशंस, बेहतर तनख्वाहें, टैक्स में रियायत यानी कि टैक्स बेनिफिट्स और कारोबारी सहूलतें, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट्स फ्राहम करके मुकामी मौक़े पैदा करने चाहिए। IT पार्क्स और स्टार्टअप मराकज़, स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स इस हवाले से मददगार होंगे। सियासी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को जो है वो लाजम करना होगा। कानून की हुक्मरानी, पॉलिसी कंटिन्यूटी और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एतमाद बहाल कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे बात करें तो एजुकेशन और रिसर्च इन्वेस्टमेंट जो है वो तालीमी और तहकीकी सरमायाकारी लानी होगी। तालीम पर ज़्यादा सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, रिसर्च सेंटर्स का क़याम और जो ग्लोबल एकेडमिक्स हैं, ग्लोबल इदारे हैं, उनसे जो रवाबत हैं, उनसे कोलैबोरेशन है वो ज़रूरी है और मेरिट पर मबनी, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट ज़रूरी है। अब बात करते हैं डायस्पोरा एंगेजमेंट और रिवर्स ब्रेन ड्रेन की। ये क्या है और ये किस तरह मददगार साबित हो सकता है ब्रेन ड्रेन को रोकने में। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिसर्च, इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन वर्किंग के ज़रिए नेशनल डेवलपमेंट में शामिल करना चाहिए। माहिरीन को वापसी पर ख़ुसूसी पैकेज यानी कि इंसेंटिवाइज्ड रिटर्न पैकेजेस देना मौसर जो है स्ट्रेटजी होगी। सोशल रिफॉर्म्स एंड मेरिटोक्रेसी, समाजी इस्लाहात और मेरिट
मेरिटोक्रेसी जो है ये कैसे ब्रेन ड्रेन को रोक सकती है। ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत और मेरिट पर मबनी जो निज़ाम है वो अवाम का एतमाद बहाल करेगा और इन अफराद की कामयाबियों को उजागर करना ज़रूरी है जो पाकिस्तान में रह कर तरक्की कर रहे हैं। कंक्लूजन की बात करते हैं हम अपने ब्रेन ड्रेन के ऐसे और इसके जो काजेज़ हैं और इसकी जो रिकमेंडेशन है, इस सारे ऐसे का हम अगर कंक्लूजन निकालें तो वो कुछ इस तरह है कि ब्रेन ड्रेन सिर्फ़ अफराद की हिजरत नहीं, ये सिर्फ़ अफराद की हिजरत नहीं कि अफराद पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हिजरत है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो भी हिजरत कर जाएगा और फिर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। अगर ये टेंडेंसी जारी रही, ये रुझान जारी रहा तो मुल्क जो है वो प्रोग्रेस की जो दौड़ है उससे पीछे रह जाएगा। लेकिन इस टेंडेंसी को यानी कि ब्रेन ड्रेन में जो है ब्रेन गेन में बदलना होगा, ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलना होगा और मुआशी इस्लाहात, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी होंगी और तालीम में इन्वेस्टमेंट करनी होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में लाजम करना होगी और डायस्पोरा की शमूलियत से पाकिस्तान अपने जो ज़हनी सरमाया को वापस हासिल कर सकता है। मुल्क की तरक्की अपने टैलेंट के बाहर भेजने में नहीं कि हम अपना टैलेंट बाहर भेज दें और हम कहें कि हमने पाकिस्तान से इतने अच्छे एजुकेटेड जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा किए हैं, बल्कि इन्हें घर पर मौके देने में है। अब फ़ैसला कुन इक़दामात का वक्त है कि हम फ़ैसला कुन इक़दामात करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो रियल पावर है, पाकिस्तान की जो रियल इमेज है, उसके अवाम की जो है इंटेलिजेंस है, उसके अवाम की ज़हानत है, इंटेलिजेंसी है और महारत है और उनकी स्किल्स हैं। थैंक यू वेरी मच।